Let us see our next question. An investment of rupees 1,36,000 yields the following cash inflow: profit before depreciation but after taxes. So directly the cash flows have been provided to us. First year to fifth year, in total it is 1,80,000. Determine internal rate of return. And then the second part of the question is there: modified internal rate of return considering 8% as cost of capital. That is the way the two questions are there. In the first part of the question, we are required to make the simple IRR calculation. We know that the IRR is calculated using trial and error method. We are required to find two NPVs. At one of the discounting rate, NPV would be positive. At another discounting rate, NPV would be negative. So IRR is a discounting rate at which NPV of the project would be 0. This is the way we are required to make the IRR calculation. Of course, the first part of the question is not something new for us. The second part of the question is new for us, which we are required to do properly. So write down answer, heading write down calculation of IRR. Now friends, for IRR calculation, randomly we have to start with any rate, and with that NPV will be found. So let us start with the working like this. Step number 1, calculation of NPV at the rate of 10%. In bracket I am writing randomly selected. हम लोग कोई और रेट से भी शुरू कर सकते हैं. हमारा पहला स्टेप होगा, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, पर सेकेंड स्टेप ऑनवर्ड्स वी हैव. सो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है 30,000, सेकेंड ईयर का है 40,000, थर्ड ईयर का है 60,000, फोर्थ ईयर का है 30,000 वंस अगेन, और लास्ट ईयर का है 20,000 रुपए. 10% का फैक्टर. जनरली आई सजेस्ट दैट से टेक फैक्टर्स अप टू 4 डेसिमल और प्रेजेंट वैल्यू चार्ट दैट इज दो डेसिमल तक. यहाँ पे हमको फैक्टर्स नहीं दे रखे हैं, सो वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अवर ओन फैक्टर्स, जिसके लिए मेरा सजेशन है 4 डेसिमल तक. अगर आप 4 नहीं करते तो एटलीस्ट 3 करना. फर्स्ट ईयर प्रेजेंट वैल्यू इज 27273. 30,000 into 0.9091, 33,056 सेकेंड ईयर का, 45,078 थर्ड ईयर का, 20490 फोर्थ ईयर का, 12,418 फिफ्थ ईयर का. इन सब का समेशन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो 138,315. इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है 1,36,000. तो एनपीवी है पॉजिटिव एनपीवी है. देन इन दैट केस वी अंडरस्टैंड दैट से हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा to reduce the NPV. So randomly we will increase to any rate for the purpose of finding revised NPV. So step number 2, उस पे लिखो, as we can see that at the rate of 10%, NPV is positive, comma, we should increase cost of capital to find revised NPV, comma, which will be
less than 0 preferably. Heading right down, calculation of NPV at the rate of 12%. क्यों 12%? उसका कोई रीजन नहीं है, हमको 10% से ज्यादा लेना है। कितना ज्यादा उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। रैंडमली मैंने यहाँ पे 2% से बढ़ाया, क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एनपीवी मार्जिनल पॉजिटिव है, तो आईआरआर बहुत दूर नहीं होगा, कुछ पास में होगा। सो आई एम टेकिंग 12%, और 12% पे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव एनपीवी आ जाता है तो 10 और 12 को मैं इंटरपोलेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसका डिफरेंस जो है ना वो विद इन 3% है। सो अगेन सेम कॉलम्स होंगे, ईयर, कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग एट 12%, प्रेजेंट वैल्यू, और उसके ऊपर से एनपीवी। So first year cash inflow is 30,000. Second year 40,000. Third year 60,000. Fourth year 30,000. And fifth year 20,000. Discounting at 12%. 0.8929. Second year it is 7972. Third year में 7118. Fourth year में 6355. Fifth year में 5674. $30,000 into 0.8929. 26,787. 40,000 into 0.7972. 31,888. 60,000 into 0.7118. 42,708. 30,000 into 0.6355. 19065. 20,000 into 0.5674. 11348. वन टू फाइव का प्रेजेंट वैल्यू है 131,796। उसके सामने हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 1,36,000 का। उसका डिफरेंस होगा एनपीवी 4204 नेगेटिव। सो लकीली वी हैव गॉट नेगेटिव एनपीवी एट 12%। सो 10 और 12 को इंटरपोलेट करके आईआरआर होगा। सो राइट डाउन हेडिंग आईआरआर। दो डिस्काउंटिंग रेट्स, उसके ऊपर एनपीवी है 10% और 12%। 10% पे एनपीवी है 2315 और 12% पे 4204। 10 और 12 का डिफरेंस कितना है? 2%। 2315 पॉजिटिव एंड 4204 नेगेटिव का डिफरेंस कितना है? दोनों का एडिशन, क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू है दूसरा नेगेटिव वैल्यू है, 6519। आईआरआर के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बेस देंगे, यानी कि 10%। तभी एनपीवी है हमारा 2315। So it is 2315 divided by 6519 into 2%. That comes to 0.71%. So IRR is 10 plus 0.71. That is 10.71%. ऐसा करके IRR होगा
and this IRR calculation is very simple that we already have done above. Now we are proceeding for modified IRR calculation, MIRR, जिसका नाम है modified IRR. Now why there is a need of modified IRR? भाई ऐसा क्या है कि भी modified IRR का जरूरत पड़ा? तो भाई बेसिकली ऐसा है कि there are two reasons because of which we are making computation of the modified IRR. एक रीजन ऐसा है, listen carefully, that IRR criteria wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the IRR rate. This is the first limitation of IRR, and to overcome that, say we are having a modified version of the IRR that is called modified IRR. और दूसरा एक लिमिटेशन है जिसका नाम है multiple IRR. So to overcome these two limitation, we have the modified IRR calculation to be made. अब ये लिमिटेशन मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ. हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ by taking a few questions that we did earlier. Now to explain the limitation of the IRR, I need to give you some explanation with respect to the NPV also. देखो, जैसे हमने ये बहुत इनिशियल क्वेश्चन किया है जिसमें इसका एनपीवी है हमारे पास 6896. तब ये एनपीवी 6896 आया, उसका मतलब क्या है, या तो फिर इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे किया जा सकता है? तो उसके लिए देखो आपको कुछ यहां पे मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन दे रखा है. फर्स्ट मेथड ऑफ द क्रॉस वेरिफिकेशन इज लाइक दिस कि सपोज कि जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है यहाँ पे 25%, दैट इज द रेट एट विच वी हैव बोरोड फंड्स. सपोज कि मैं लोन लेके बिजनेस कर रहा हूं, देन इन दैट केस एनपीवी क्या बताता है? लिसन केयरफुली. एनपीवी ये बताता है कि पूरा का पूरा लोन रीपे हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसके बाद आपके पास सरप्लस बचेगा इक्वल टू द पॉजिटिव एनपीवी. अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा लोन रीपे हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसके बाद आपके पास सरप्लस बचेगा इक्वल टू द पॉजिटिव एनपीवी. लेट अस अंडरस्टैंड एंड से हाउ वी कैन क्रॉस वेरीफाई इट. देखो, सपोज कि हमने 10,000 का लोन लिया, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा? 2500. हमारा फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल कितना है? 4,000 रुपए. जो भी हमारा फर्स्ट ईयर का कैश अक्रूवल है 4,000 रुपए, उसमें से 2,500 रुपए हम लोग इंटरेस्ट का पे करेंगे और 1,500 रुपए का प्रिंसिपल रीपे करेंगे. तो हमारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल हो जाएगा 8,500. सेकेंड ईयर 8,500 के ऊपर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा. ब्याज कितना है? 2125. अच्छा, सेकेंड ईयर हमारे पास कैश अक्रूवल बिजनेस का कितना है? 7,000 रुपए. ये 7,000 रुपए में से हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट पे करेंगे 2125, और बाकी का क्या होगा? प्रिंसिपल रीपे करेंगे. थर्ड ईयर, लिसन केयरफुली, 8,500 में से ये 4,875 डिडक्ट किया, तो इतना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बचा. इंटरेस्ट ये है, टोटल रीपे करना है 4,531.25, एंड यू कैन सी दैट से हमारा थर्ड ईयर का कैश अक्रूवल है 18,000. उसमें से इतना रीपे करने के बाद आपके पास सरप्लस कितना बचा? 13,468.75. ये कौन सा साल का है? ईयर थर्ड एंड का है. नहीं, देखो, पॉजिटिव एनपीवी का मतलब ये है कि पूरा का पूरा लोन रीपे हो जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, और उसके बाद आपके पास सरप्लस बचेगा. तो जो एनपीवी ने बोला वैसा यहां पे हुआ.
अमाउंट अलग आया, नहीं नहीं नहीं, अमाउंट भी सेम है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये कौन से साल का है, थर्ड ईयर का है, उसको आप देखो प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट करो, you will get exactly the same, that is 6896। ऐसा करके हम लोग पॉजिटिव एनपीवी को ऐसा क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। Now suppose somebody is having a point, sir ये 25% may not be the rate at which we borrow and do business, this may be our opportunity cost to invest the fund somewhere else। तो उस केस में देखो, उस केस में भी कंक्लूजन तो वैसा ही है। अगर एनपीवी पॉजिटिव है ना, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो आप अदरवाइज कमा सकते थे ना, वो पूरा का पूरा यहाँ पे रिकवर हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बचेगा, और वो एक्स्ट्रा क्या है, दैट इज अ पॉजिटिव एनपीवी। चलो वापस चेक करते हैं। सपोज आपने 10,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट किए होते 3 साल के लिए, तो आपके पास थर्ड ईयर के एंड में क्या होता, 19,531.25, दैट इज 1.25 रेज टू 3। This is the amount that say you will have। इसी का ये डिटेल वर्किंग है। Amount is of course going to remain same। Now you invest in this project। Now ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया आपने, पहले साल आपको 4,000 रुपए मिला, आपने बोला था क्या मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 25% है, तो ये पैसा 2 साल के लिए री इन्वेस्ट करो। सेकेंड ईयर में जो पैसा मिला उसको 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करो, और ये तो थर्ड ईयर का पैसा ही है। This is the amount that you will receive at the end of the third year। So we understand that से comparatively है ना, इन दोनों का कंपैरिजन करो, कौन सा बेटर है, so this is better। By how much amount it is better, you can see that it is again better by 13,468.75। और आपको तो पता ही है that say this amount in present value term is exactly equal to the NPV 6896। ऐसा करके हम लोग जो एनपीवी है ना, वैसा क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अभी मैं आईआरआर के ऊपर आता हूं। नाउ गिविंग फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द आईआरआर। फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है, पर फाइनली मॉडिफाइड आईआरआर का कैलकुलेशन बहुत छोटा है, बिलीव मी। ये भी एक हमने आगे क्वेश्चन किया हुआ है, जिसपे सबसे पहली बार हमने आईआरआर का वर्किंग किया था। You can see the answer that IRR है 25%। Now again we understand like this, that say this is the rate at which we are getting return from the project। इसलिए हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट बेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट का 25%। This is the rate at which say we are able to earn। तो जो रेट से हम लोग कमाते हैं ना, उतना हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट बेयर कर सकते हैं। भाई ऐसे कैसे हम लोग 25% से कमाते हैं, प्रूव करके दो। चलो ठीक है, प्रूव करके देते हैं। देखो प्रूव कुछ ऐसा होगा, अगर आपने ये 10,000 रुपए, ये प्रोजेक्ट का जो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं और किया होता एट 25% फॉर 3 इयर्स, तो आपको थर्ड ईयर के एंड में इतना मिलता। उसकी जगह, अच्छा यही का ये डिटेल वर्किंग है इधर, उसकी जगह से यू मेक इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, 3,500, उसको 2 साल के लिए री इन्वेस्ट करो। सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, 4,250, उसको 1 साल के लिए री इन्वेस्ट करो। थर्ड ईयर में क्या मिलेगा, 8,750, उसको तो री इन्वेस्टमेंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग 19,531.25। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है, यानी क्या हुआ, दैट 10,000 रुपए कहीं और इन्वेस्ट करते हैं एट 25%। 10,000 रुपए क्या इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट का, एट 25% फॉर 3 इयर्स, और आपको जो मिलने वाला था एग्जैक्टली वही अमाउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है, कंसिडरिंग दैट द इंटरनल कैश अक्रूवल्स आर रीइन्वेस्टेड सेट द आईआरआर 25%। ऐसा उनका जस्टिफिकेशन है, ऐसा उनका एक्सप्लेनेशन है, किसका, आईआरआर क्राइटेरिया का। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स। देखो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा था, क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा था that Mrs. X Limited is considering purchasing of a machinery, life of the machinery is 3 years, purchase price of the machinery है 10,000 रुपए, cash inflow at the end of the each year is likely to be as under, cost of capital दे रखा है हमको 10% and so on। Importantly हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cost of capital है 10%।
So this is the point for which the IRR criteria is criticized. हमने आपको बोल के रखा था क्या कि भाई हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो 10% है, आप मेरे को क्या बोल रहे हो कि आपको रिटर्न मिलेगा 25%। फिर मैंने पूछा कि कैसे मिलेगा 25% का रिटर्न, तो आप मुझे जो जस्टिफिकेशन दे रहे हो उसमें आप क्या कर रहे हो, ये पहले साल का कैश अक्रूवल को 1.25% से 2 साल के लिए मैं री इन्वेस्ट करूंगा, सेकेंड ईयर के कैश अक्रूवल को मैं 25% में री इन्वेस्ट करूंगा, तब मेरे को 25% का रिटर्न मिलेगा। आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, पर मैंने तो तुमको बोल के ही रखा था क्या कि मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट 25% है ही नहीं, मेरा री इन्वेस्टमेंट रेट तो 10% ही है, मैं तुम्हारे ऊपर कहां से भरोसा कर सकता हूं। सो दिस इज द पॉइंट फॉर विच द IRR criteria is criticized, that at one point of time, that is how can you make the assumption for the different reinvestment rate than the cost of capital of the company। और इसलिए हम लोग यहां पे मॉडिफाइड IRR का कैलकुलेशन कर रहे हैं। नाउ फर्दर सपोज कि दो प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, दोनों का एनपीवी कैलकुलेट किया हमने। फॉर एग्जांपल एनपीवी आता है 1000, 2000, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 9%, हमने IRR कैलकुलेट किया। ए का IRR आता है फॉर एग्जांपल 16% और बी का IRR आता है सपोज की 22%। तो एनपीवी क्राइटेरिया क्या अज्यूम करता है कि इंटरनल कैश अक्रूवल ऑफ ए विल बी रीइन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9%, इंटरनल कैश अक्रूवल ऑफ बी विल बी रीइन्वेस्टेड एट 9%। IRR क्राइटेरिया क्या अज्यूम करता है कि अगर प्रोजेक्ट ए लिया ना तो उसका इंटरनल कैश अक्रूवल 16% से रीइन्वेस्ट होगा, और बी प्रोजेक्ट लिया ना तो उसका इंटरनल कैश अक्रूवल 22% से रीइन्वेस्ट होगा। यानी क्या होगा, लेट्स से द इंटरनल कैश अक्रूवल्स कैन बी रीइन्वेस्टेड ऑफ प्रोजेक्ट ए एट दिस रेट एंड फॉर प्रोजेक्ट बी एट दिस रेट। Suppose these are the mutually exclusive investment opportunity, then again this is something which is not acceptable। कैसे, देखो सबसे पहले IRR क्राइटेरिया गलत assumption करता है, let's say this is the reinvestment rate instead of this, this is the reinvestment rate instead of this, ये पहला गलती। दूसरा, at one point of time how can one company have the two reinvestment rate, यानी अगर ये कंपनी प्रोजेक्ट ए लेगा तो उसके इंटरनल कैश अक्रूवल्स वो लोग 16% में रीइन्वेस्ट करेंगे, और अगर ये कंपनी प्रोजेक्ट बी लेगा तो उसके इंटरनल कैश अक्रूवल 22% में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट हैव द टू रीइन्वेस्टमेंट रेट्स फॉर वन कंपनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कंपनी के पास अलग अलग रीइन्वेस्टमेंट रेट्स है, देन इन दैट केस द कंपनी वुड सिलेक्ट द रीइन्वेस्टमेंट रेट व्हिच इज हायर for the purpose of making reinvestment of the internal cash accrual। That is the reason say we have a modified version of the IRR in which we are going to make the calculation of modified IRR। So to overcome this limitation we have a modified IRR to be calculated। दूसरा भी limitation है वो मैं आपको समझाता हूँ, but before I explain that I want somebody of you to tell me that what do you think how we can make the computation of the modified IRR, उसके कैलकुलेशन का थोड़ा डिस्कशन करते हैं। So friends, over here we understand logically like this, लिमिटेशन क्या है रीइन्वेस्टमेंट रेट का, तो चलो उसको निकाल देते हैं। मॉडिफाइड IRR क्या बोलता है कि ये पहले साल जो अपने को पैसा मिलता है ना उसको हम लोग 8% पे रीइन्वेस्ट करेंगे फॉर द रिमेनिंग 4 years, है ना। आप बताइए आपका क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो रेट से री इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे साल के कैश अक्रूवल को 3 साल के लिए, तीसरे साल के कैश अक्रूवल को 2 साल के लिए, चौथे साल के कैश अक्रूवल को 1 साल के लिए, ऐसा करके 8% से हम लोग इंटरनल कैश अक्रूवल्स को री इन्वेस्ट करेंगे। एंड देन वी विल हैव द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इंटरनल कैश अक्रूवल। सपोज की फॉर एग्जांपल ये 1,80,000 की जगह कुछ ज्यादा आएगा, then of course it would be higher than that। I'm taking randomly an amount, let us say it comes to 2,20,000।
यानी अभी गौर से सुनो कि हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1,36,000 का। सो 1,36,000 का ईयर जीरो में इन्वेस्टमेंट किया, और उसके सामने वी गेट एन अमाउंट ऑफ 2,20,000 कब, फिफ्थ ईयर के एंड में। सो व्हाट इज द रेट एट विच वी आर गेटिंग रिटर्न विल बी फाउंड एज बैलेंसिंग फिगर लाइक दिस, 1,36,000 into 1 plus modified IRR raised to 5 is equal to 2,20,000. 1,36,000 into 1 plus I raised to n, that is 1 plus modified IRR raised to 5 is equal to 2,20,000. ये मेरा assumed figure है, हम लोग of course calculate करेंगे, and this will be found as balancing figure using trial and error method. क्योंकि ये रेस टू 5 है तो फिफ्थ रूट हमारे कैलकुलेटर में नहीं होगा, और हमको ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा फॉर मेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मॉडिफाइड आईआरआर। फ्रेंड्स, ये दूसरा क्या लिमिटेशन है वो मैं आपको समझाता हूं, बट बिफोर दैट से लेट अस मेक सम कैलकुलेशन। हेडिंग राइट डाउन, आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन, उसमें लिखो calculation of MIRR. In that first one, write down MIRR modified IRR जिसको कहा जाता है is calculated, comma, in order to overcome major limitation of IRR criteria that it wrongly assumes that internal cash accruals can be reinvested at the rate IRR. Second point, suppose cost of capital of the company is 10% and IRR is 25%, comma, then making assumption that internal cash accruals can be reinvested at the rate of 25% is completely unrealistic. Full stop. With paragraph write down. Further, in case of mutually exclusive investment proposal, comma, assuming that
internal cash accruals can be reinvested at different rate is also not acceptable. Full stop. At one point of time, one company cannot have more than one reinvestment rate. Full stop. Third point, in order to compute MIRR, comma, we will follow under mentioned steps. उस पर लिखो स्टेप नंबर 1, compute future value of internal cash accruals. Full stop. For this, we will apply cost of capital of the company. Full stop. Step number 2, using following equation, comma, find MIRR. इक्वेशन लिखिए, इन्वेस्टमेंट into future value interest factor at MIRR for n number of years is equal to future value of internal cash accruals at the rate company's cost of capital. That is the way step number 2 will be applied. With paragraph write down, in above formula, MIRR will be found as a balancing figure. Full stop. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक दूसरा लिमिटेशन है जिसका नाम है मल्टीपल आईआरआर. मल्टीपल आईआरआर का थियरी सीए इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में इंक्लूड किया है. उसका कोई भी न्यूमेरिकल उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है. ऑफ कोर्स उसका न्यूमेरिकल होता है पर उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है. तो मल्टीपल आईआरआर का मतलब क्या वो मैं आपको समझाता हूँ. Dear students, there are certain exceptional cash flow series.
रूटीन में नहीं होता ऐसा, एक्सेप्शनल कैश फ्लो सीरीज में होता है, wherein we have more than one discounting rate at which NPV of the project is zero. कैसे? For example, the cash flow series is like this. There is cash outflow of 100, there is cash outflow of 220, and there is cash inflow of 310. देखो, आउटफ्लो, इनफ्लो, वापस आउटफ्लो. अगर ऐसा कैश फ्लो सीरीज है ना, then in that case so there is a situation of multiple IRR. ऐसा होता है. So over here we have a kind of situation like this. There is more than one discounting rate at which NPV of the project is zero. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम लोग IRR का कैलकुलेशन करेंगे ना, उसका न्यूमेरिकल इंक्लूडेड नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ. अगर किसी को जानना है तो मेरे को बताइएगा. आई एक्सप्लेन यू दैट नॉट ड्यूरिंग द लेक्चर बट आफ्टर द लेक्चर. तो ऐसा होगा. वी आर हैविंग अ सिचुएशन लाइक दिस. So there are two discounting rates at which NPV is zero. ऐसा दो discounting rate पे NPV zero होगा. So this is also IRR and this is also IRR. ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेना क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. उसकी जगह पे कैश फ्लो सीरीज ऐसा है, ईयर 0 100 का इनफ्लो, ईयर 1 310 का आउटफ्लो, ईयर 2 220 का आउटफ्लो. इनफ्लो. यानी क्या, वापस इनफ्लो, आउटफ्लो एंड इनफ्लो. यानी क्या होगा, देयर विल बी से द चेंज ऑफ द साइन. ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. Then in that case we are having say more than one discounting rate at which NPV of the project would be zero. ऐसा. ऐसा होगा. तो अगेन ये भी IRR होता है, ये भी IRR होता है. डियर स्टूडेंट्स, ऐसा है कि डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं है, डिसीजन ले सकते हैं. पर क्या होगा, दैट से इट विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजन विद द सोल IRR. आपको एटलीस्ट एक रेट के ऊपर NPV का वैल्यू चाहिए. जैसे कि इफ एट ऑल आई टेल यू लाइक दिस, जैसे ऐसे बता रहा हूं मैं, सपोज ये 10% है या 30% है. तो क्या होगा, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन दोनों के बीच में, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए. 10 से कम है तो रिजेक्ट करो, 30 से ज्यादा है तो रिजेक्ट करो. यानी डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ पता है फ्रेंड्स. अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 है ना, तो प्रोजेक्ट मत लो, 15 है तो ले लो. ऐसा हो जाएगा. इधर समझोगे सेम ही है तो ये आप लोग समझ पाओगे एग्जैक्टली 10 एंड 30. तो देखो क्या होगा कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10 से कम है या तो 30 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो. अगर इन दोनों के बीच में है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करो. ऐसा इनका कहना है. वापस यहाँ पे क्या हुआ कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 25 है तो नो, 35 है तो हाँ. ऐसा हो जाएगा. तो थोड़ा अनयूजुअल हो जाएगा. सो टू ओवरकम दिस लिमिटेशन ऑल्सो वी हैव अ मॉडिफाइड IRR वर्किंग, और जिसमें मॉडिफाइड IRR में एक ही आंसर आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा. जैसे कि समझो कि फॉर एग्जांपल ये वाले कैश फ्लो सीरीज का मेरे को मॉडिफाइड IRR फाइंड करना है, तो उसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इसको है ना सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू टर्म में डिस्काउंट किया जाएगा. फिर इसको हम लोग यहाँ से यहाँ फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वी आर हैविंग सम द मॉडिफाइड IRR. This is the way the modified IRR will be calculated. और सपोज कि मैं ऐसा बोलता हूं आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 40%. एट दिस टू रेट्स NPV 0. यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों IRR है. मैं आपको ऐसा बोलता हूं. एंड यू टेल मी दैट से वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट एट द रेट ऑफ 16% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Then you cannot answer with this.
क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पे डायग्राम ऐसा है या ऐसा है वो देखना पड़ेगा। अगर डायग्राम इस हिसाब से है देन इन दैट केस डिस्काउंटिंग रेट 16% पे हाँ बोलेंगे, अगर ऐसा है देन इन दैट केस हम लोग ना बोलेंगे। ऐसा होता है। एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल नहीं है, सिर्फ इसका थियरी है, और इसका थियरी मैं आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल आईआरआर का अगर हमको क्वेश्चन दैट इज थियरी पूछा है तो आपको यही सब कुछ लिखना है जो अभी मैं आपको लिखवाऊंगा। एंड so this is what's a one more reason that say why do we make the computation of the modified version of IRR. IRR का modified version that is modified IRR. Thank you.